our session on human resource practices. I welcome Uzair Javed on behalf of DHS Safa University. Uzair has been associated with different organizations and he's a certified trainer as well. So over to you, Uzair, for your introduction. तस्लीम, मैं आपको उससे पहले एक प्रेजेंटेशन सेंड कर सकता हूँ। लेकिन जो प्रेजेंटेशन है वो अपडेटेड नहीं है, उसमें कुछ वो जो हमारी क्विज मुतालिक जो एक्टिविटीज़ में डिटेल हुई थी वो ऐड नहीं है। तो क्या मैं आपको ईमेल कर दूँ या इसके थ्रू उस पर सेंड कर दूँ ताकि आप उसको प्ले कर दें? Perfect. I'll do that. Otherwise, you can also share your own screens. Okay. So then I'm sharing at my screen. अच्छा, आप इसके लिए आपको होस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। आप होस्ट क्रिएट कर देंगे तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा। ओके। ओके, क्या आप मुझे बता सकती हैं आपको स्क्रीन नजर आ रही? शेयर हो गई? Yes, it's visible. ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर हम सबके माइक ऑन कर सकें तो मैं आपकी आवाज़ सुन सकूं, आपका नाम और आप किस सेमेस्टर से में हैं इस वक्त, या आप में से कोई प्रोफेशनल है कहीं और उसमें है। इज इट पॉसिबल तहसीन? Yes, sure they can. ओके, आप में से बारी बारी सब अपने माइक ऑन करके मुझे अपना नाम बताएं और जिस सेमेस्टर में आप हैं वो आप मुझे बता सकते हैं। और एचआर से मुतालिक आपने कोई भी एक फंक्शन जो उस वक्त आपने जो आपको याद हो उसका अपना नाम बताना है, देन फिर हम उसका फर्दर डिस्कस करेंगे। Okay, we'll start with Taimur. Is Taimur available? Yes, sir. तैमूर, क्या है एचआर? और पहले तो अपने बारे में कुछ बताएं थोड़ा सा। सर, अपने बारे में आपका नाम तैमूर है, आप बीबी किस सेमेस्टर में हैं? सर, हम करंटली मैं 5th सेमेस्टर में हूँ और इंटरमीडिएट मेरा कैडेट कॉलेज से है, इंटीरियर सिंध से। मैट्रिकुलेशन भी इंटीरियर सिंध से कैडेट कॉलेज से ही है। बस ठीक है। और नेक्स्ट पार्टिसिपेंट, जैसे कि मैं आपकी आवाज सुनना चाह रहा हूँ। यहाँ पे सब मौजूद हैं। Yes, Mahir. Yes. Yeah, so my name is Mahir Shaukat and I'm in 5th semester. Talking about HR, I think HR basically explains us that not just the organization or the product you're selling is important, but the people you have employed, the people who are basically behind all of these procedures are actually the important key, and they should be given attention, and all the processes that are held in an organization should take into account the employees' need and how they would be comfortable working in your organization. Okay, it's been managing employee through different aspect. I see. Yeah. Okay. Anyone else? क्या हमारे साथ दो ही पार्टिसिपेंट इस वक्त हैं? So you can have a list on the side of the participants and then you can call them one by one, and whoever like you are. Sir, can I go? Yes, Zoha. Yeah, so my name is
Zoha, and I'm also in my 5th semester. As far as HR is concerned, it's one of the fields that I'm really interested in, and this is the first time I'm actually getting to study it as well. It's basically HR, as far as I know, it serves as a bridge between management and employees, and I feel like it's very important. And this is something that wasn't a big deal maybe like 50, 60 years ago, but people have started realizing how important motivating employees is, and how important it is to handle the human aspect of your workers as well. So that's one thing that I'm really interested in, and I'm excited about today's lecture as well. Great. Fareed Ahmed Khan. Assalamu alaikum. My name is Farid Ahmed and I'm a student of BBS. Basically, human resource management is a group who is responsible for managing the employee's life cycle. For example, hiring, training, and firing of the employees. Okay, great. Bushra Malik. Yes, sir. My name is Bushra Malik and I'm in 5th semester. If we talk about HRM, it's like a basic tool and very important tool for an organization to manage their people in a very effective way. Like they basically the HRM, it's regarding about the people needs and satisfying their employees and customers and etc., like how they manage their people. It includes like hiring, firing, and compensation and so on. So it's all about, this is what HRM is about. Okay, great. Okay, let's start. बाकी लोग भी मुझे उम्मीद है कि सबके साथ हमारे साथ ही मौजूद होंगे। वक्तन मैं आप लोगों को इसी तरह से कॉल करता रहूँगा और आपसे कुछ ना कुछ सुनता रहूँगा, ताकि मुझे ये एक्टिव लगे मैं अकेला ही यहाँ पे सब नहीं बोल रहा, हम इसको टू वे रखेंगे, इंट्रैक्शन हमारी दोनों तरफ से होगी। ठीक, तो HR के जी, HR आप में से बहुत ने बताया जी, मैनेजिंग पीपल, जो कि कंपनी की जो एम्प्लॉयज़ की जो नीड्स होती है उसको फुलफिल करना, ताकि वो काम अपना तरीके से सर अंजाम दे सके, इसी को HR का एक है। इसमें आपकी एम्प्लॉयज़ की हायरिंग होती है, फायरिंग होती है, और आपकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, आपकी कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, ये सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। अगर मैं बात करूं बेसिक फंक्शंस की, तो क्या है HR के बेसिक फंक्शंस? आप मुझे बताना चाहेगा? अपना माइक आप लोग ऑन कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। तैमूर आबिद, आप बताएंगे? यस सर। जी, टॉप HR फंक्शंस क्या होते हैं? सर हायरिंग होती है, बाकी एम्प्लॉयमेंट्स की ट्रेनिंग, उनके रिवॉर्ड्स वगैरह, फायरिंग। जी ओके, ग्रेट। एम्प्लॉयमेंट सबसे पहले जो फंक्शन, जी ठीक है, सबसे जो टॉप पे फंक्शन आता है वो HR का, वो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। प्लानिंग से क्या मुराद? प्लानिंग से मुराद वही प्लानिंग है जो आप लोग अपने लिए, अपने टास्क के लिए करते हो, या अपने किसी काम के लिए जाने के लिए करते हो, कहीं आप ट्रैवल पे जा रहे हो करते हो, वही ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती है। वो किस वक्त मौसर होती है, किस वक्त काम करते हैं? उस वक्त जब आपका कोई फर्ज करें एक पोजीशन अवेलेबल है, या हमारे पास कोई प्रोजेक्ट एक्सपेंशन चल रही है इस वक्त, ठीक है, तो प्रोजेक्ट एक्सपेंशन हमें कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, कितने लोगों की नीड है, अब उनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या उनका जॉब टास्क होगा, क्या, ये बेसिकली प्लानिंग में आता है आपका। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बगैर समझे आप कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक, स्टार्ट आपका हमेशा प्लानिंग से होता है, देन फिर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन आती है। ये बेसिकली इसका पहला जो है वो फंक्शन होता है। इसमें हम थ्योरेटिकली बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करूँ और कुछ फॉर्म्स वगैरह दिखाऊं कि ये फॉर्म्स वगैरह एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से ये फॉर्म्स फिल हो रहे होते हैं, और क्या 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 ये फॉर्म्स किस तरह से बनते हैं। तो इसके थ्रू आपको ज़्यादा अंदाजा होगा। थ्योरेटिकली तो आप ऑलरेडी सब चीज़ें पढ़ भी रहे होगे, पढ़ भी चुके होगे, और आगे इन फ्यूचर आपने कंपटीशन में सब चीज़ें पढ़ोगे। तो सबसे पहला जो आता है वो आपका प्लानिंग आता है। अच्छा, अब प्लानिंग की इसके बाद आता है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट के फिर हम टूल यूज़ करते हैं। रिक्रूटमेंट किस लेवल की होनी चाहिए, आइदर इंटरनल रिक्रूटमेंट होनी चाहिए या एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट चाहिए। एक पोजीशन अवेलेबल है HR एग्जीक्यूटिव की, ठीक, HR एग्जीक्यूटिव की देखता हूँ, मैं पहले देखूंगा इंटरनल रिक्रूटमेंट, क्या हमारे पास हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा एम्प्लॉय है
इसको हम प्रमोट कर सकते हैं इस पोजीशन पे, या कोई स्विच करने के लिए रेडी है, या फिर उसकी नीड्स देख के या उसके स्किल्स देख के हमें बीइंग एन एचआर को लगता है कि जी ये इसका ये जो पर्सन है ये परफेक्ट फिट रहेगा। तो ये अगर नहीं तो फिर आप इसको जॉब ऐड करते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, जो कि इस वक्त टॉप पे अगर आप देखें तो लिंक्डइन पर चल रहा है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ किस किस ने लिंक्डइन की आईडी क्रिएट की है, कौन कौन लिंक्डइन यूज करता है? कोई ऐसा जो लिंक्डइन पे है जिसने अपना आईडी क्रिएट की भी हो? जी सर, मेरी की है, ये गीता कुमारी है। ओके, चैट पे लिख दें सर, चैट पे आप लिख सकते हैं यस और नो। जो माइक अपने ओपन नहीं कर रहे वो चैट पे लिख दें यस और नो। क्या लिखना है सर? अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप चैट पे लिखेंगे यस, अगर नहीं तो नो। Yes, sir, I am using. ओके, ग्रेट। नो। और बाकी लोग? ठीक है, अराउंड 30 नो। ओके, अराउंड 70% यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो कि अपना जो कि लिंक्डइन यूज ही नहीं करते, ऐसे ही है? ठीक है, तो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स है लिंक्डइन के थ्रू जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब हायरिंग के। उसमें आपका एक लिंक्डइन है, इंडीड है, बाकी आप इंटरनल हायरिंग करते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म है तो जो आप जॉब पोस्ट करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से सब्सिडी की जाती है। फिर एक आता है जब एम्प्लॉय की आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एक टूल होता है, ये भी एचआर फंक्शन है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट है, ये भी एचआर फंक्शन है। करियर प्लानिंग जो कि आगे का मैं उसके बारे में बताऊंगा। फंक्शन इवैल्यूएशन क्या होता है उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। रिवॉर्ड सिस्टम, इंडस्ट्रियल रिलेशन बेसिकली डिस्प्यूट, इसके अलावा लेबर इश्यूज जो होते हैं, डिसिप्लिनरी केसेस वगैरह होते हैं, एम्प्लॉय को शो कॉज देना, टर्मिनेशन, अगर इसने कोई पॉलिसी के खिलाफ कोई काम किया है तो उससे चीज़ें जो भी डील होती हैं वो इंडस्ट्रियल रिलेशन में डील होती हैं। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एंड कम्युनिकेशन, ये एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अब सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज़ के साथ ये नहीं हो रहा कि वो आ रहा है सुबह 9 बजे एंटर होता है और 5 साढ़े 5 बजे वो आउट कर जाता है। उसके दरमियान एक पूरा एक एनवायरनमेंट क्रिएट रहता है, एम्प्लॉय से पार्टिसिपेशन होती है, कम्युनिकेशन हो रही होती है, उसके साथ एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, मुख्तलिफ इसको चीज़ों में इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया जा रहा होता है। और इसके अलावा एक और डोमेन होता है हेल्थ एंड सेफ्टी का। अक्सर सुना होगा आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह में कि फ़लाँ फैक्ट्री में फ़लाँ इदारे में आग लग गई और सेफ्टी का निज़ाम ना होने की वजह से ये सब कितने लोगों की हलाकत मौत हो गई इसमें। तो ये बेसिकली एक एचआर का फंक्शन है कि वो किस तरह से इन सब चीज़ों को मैनेज करता है। उसमें एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग भी आती है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी कहीं ना कहीं एचआर को रिपोर्ट का होता है, इसका एचआर का ही पार्ट होता है। इसके अलावा पर्सनल वेलबींग, ऑर्गेनोमिक्स एक टर्म है जो कि आप लिख भी सकते हैं, गूगल पे सर्च भी कीजिएगा, पर्सनल वेलबींग उसमें आती है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि एचआर की पॉलिसीज प्रोसीजर्स उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, एम्प्लॉयज़ को किस तरह से बताया जाए और किस तरह से कंट्रोल किया जाए, ये सब उसमें आता है। अब हम बात करते हैं अगर ह्यूमन रिसोर्स ऑपरेशन, मैंने आपसे पहले बताया था कि जॉब एनालिसिस के बारे में किसी को पता जॉब एनालिसिस क्या होता है, क्यों किया जाता है? अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। It is basically रेमशा सलीम आप बताएंगे? ओके, कैरी ऑन जो आप It is basically the job description with job specification that the company puts in front of the employee. In front of the employee, it's employee की हायरिंग से पहले ये काम किया जाता है या employee की हायरिंग के बाद ये काम किया जाता है? I think job description is something that tells the organization what they are looking for, the position they want to fill in, okay, and what kind of employee they are basically looking for that would fill that position. Okay.
stating all the specifications, like the qualification, and that's how the job analysis is conducted. Okay, and who is responsible for that? For job analysis? Job analysis. The line and staff managers, I think. Okay, in coordination with HR. Yeah. ठीक है, इसी के बेस पे आप रिक्रूटमेंट का प्रोसेस डिजाइन करते हैं. अब जॉब एनालिसिस में आपकी स्पेसिफिकेशन आ गई, आपकी टेक्निकलिटीज आ गई, किस तरह का क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए, आइदर इट्स फ्रेशी, इसकी कोई जॉब डिस्क्रिप्शन से पहले से कोई इसमें आपकी जॉब इसका क्या रोल, इसका क्या रोल वो प्ले करेगा, क्या पार्ट वो प्ले करेगा उस ऑर्गेनाइजेशन में, क्या काम उससे लेना है. ठीक, इसके बाद आता है आपका रिक्रूटमेंट का पार्ट. अब रिक्रूटमेंट जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से रिक्रूटमेंट हो रही होती है. या तो आप इंटरनल कर रहे होते हैं या फिर आप एक्सटर्नल कर रहे होते हैं. ठीक, सिलेक्शन का रिक्रूटमेंट को अगर मैं सिंपल ये कहूँ कि जी आपने एक कैंडिडेट्स का जो है पूल, एक डाटा जमा कर लेना है, वो आपका रिक्रूटमेंट फेज है. इसके बाद आप इनकी शॉर्ट लिस्टिंग करते हो, सिलेक्शन प्लेसमेंट होती है, देन फिर वो एक अलग मैटर है. तो रिक्रूटमेंट बेसिकली इज गेटिंग अ पूल ऑफ कैंडिडेट. आपने कहीं जॉब पोस्ट करी, आपको सीवी रिसीव हो गई सारी, तो वो आपका रिक्रूटमेंट का फेज आपका उसमें स्टार्ट हो गया. देन फिर आप सिलेक्शन करते हो, फिर आप प्लेसमेंट, फिर ऑनबोर्डिंग, फिर आगे चलता रहता है सब चीज़ें. ठीक, डेवलपमेंट क्या होता है, इसके बाद एक एचआर का जो फंक्शन है जो वो है डेवलपमेंट फेज का. एम्प्लॉय की ट्रेनिंग, एम्प्लॉय का करियर प्लानिंग, एम्प्लॉय की डेवलपमेंट, ट्रांजिशन फेज, परफॉर्मेंस अपने, ये सब बेसिकली डेवलपमेंट में आता है. इसके बाद कंपनसेशन का एक डोमेन है. कंपनसेशन में वैल्यूएशन होते हैं, आप इसके सैलरी और वेजेस कंपेयर करते हो मार्केट से, या तो कंपनी का अपना डिसाइडेड हो उस पर, या फिर अब ये होता है कि मार्केट सर्वे होता है कि अगर एएम लेवल या डीएम लेवल की पोजीशन है तो मार्केट में इस लेवल की पोजीशन के और इस क्वालिफिकेशन और इस एक्सपीरियंस की जो पर्सन है उसकी मार्केट क्या वैल्यू है. ठीक, अगर मैं एफएमसीजी की बात करूं तो एफएमसीजी में उसकी क्या वर्थ है, क्या पैकेजेस, क्या उसको बाकी बेनिफिट दिए जा रहे हैं. अगर मैं बात करूं सर्विस सेक्टर की या जो की, तो उसमें डिफरेंट है, उसका डिफरेंस होगा. तो वो जो एचआर का जो रिक्रूटमेंट टीम होती है, टैलेंट एक्विजिशन टीम होती है, टैलेंट मैनेजमेंट के लोग होते हैं, वो बेसिकली सैलरी सर्विस वगैरह करके रखते हैं, और इसी के बेस पे कंपनी से फिर इसका बजट अप्रूव होता है और ये न्यू पोजीशन या फिर रीहायरिंग उस पर प्रोसेस होती है. इसके अलावा बोनसेस होते हैं, इंसेंटिव होते हैं, पेरोल प्रोसेस होता है. ठीक, इंटीग्रेट में आपका आता है लेबर रिलेशन, मोटिवेशन, ग्रीवेंस और डिसिप्लिनरी एक्शंस वगैरह एम्प्लॉय के. और बाकी मेंटेन में अगर हम बात करें तो हेल्थ एंड सेफ्टी का एक लॉज भी हैं. आप इन फ्यूचर अपने इसमें जब कंप्लीट करेंगे तो लॉज वगैरह भी पढ़ेंगे. तो लॉज में ये होता है कि जो कुछ एम्प्लॉयमेंट लॉ हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेटेड, जैसे कि ओवरऑल सिन टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जो कि सिन में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उन पे लागू होता है. बाकी फेडरल इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, फेडरल जो है वो ओवरऑल मैनेजर होता है. तो कंपनीज जो है उसको देखते हुए एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट, उसकी जो डिसीजन है वो सब ले रही होती हैं. सोशल सिक्योरिटी का है, EYSSC, ये सब चीज़ें, रिस्क मैनेजमेंट, रिकॉर्ड कीपिंग, वेलफेयर, ये सब उसमें शामिल होता है. अच्छा, HR स्ट्रेटजी एंड बिजनेस रिजल्ट, ये पता है जी HR में हायरिंग करते हैं, सबको पता है. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होती है, ठीक है. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होती है, रिवॉर्ड सिस्टम होता है. आपकी जो बिजनेस स्ट्रेटजीज होती हैं, जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव, मिशन, विजन होते हैं, उसको अलाइन करते हुए ये सारे काम किए जा रहे होते हैं. मैं ये नहीं कह सकता कि जी ये मैंने इस शख्स को हायर कर लिया, क्यों हायर किया, कोई मिशन नहीं है इसका, कोई विजन नहीं है, कोई बिजनेस से लाइन नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं हो सकती. आप उसकी ट्रेनिंग जब करवाते हैं तब भी पर्पस यही होता है इसका. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी आप उसका उसी बेस पे करते हैं. रिवॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम भी आप उसी पे डिवाइस बेस होता है आपका. और यही चीज़ आपके बिजनेस को, रिजल्ट को ओवरऑल इफेक्ट कर रहा होता है. एम्प्लॉय लाइफ साइकिल के बारे में किसी को पता है? नुमान शेख. Umar Sultan. Sir, can you repeat? What did you just say? Studies of employee life cycle. Anyone? मुझे बता सकते हैं के बारे में आपने पढ़ा है कुछ? ओके, मेरे माइक की आवाज आ रही है आपको?
Actually, जी Umar, जी सर आपकी बात आ रही है। Umar, Many mic is not working. Okay, now it's working. यस Okay, मुझे बता सकते हैं एम्प्लॉय लाइफ साइकिल क्या होती है? पढ़ा है इसके बारे में? स्टेजेस क्या होते हैं एम्प्लॉय लाइफ साइकिल के? अब्दुल्ला ताहिर, आसिया बतूल, एम्प्लॉय लाइफ साइकिल के बारे में। ओके, एम्प्लॉय लाइफ जैसे इसको मैं बिल्कुल समराइज करके उसको सिंपल एग्जांपल में दूं तो एक इंसान की पैदा। This is Asif एक- Batul. Sir, Yes. life cycle is based on stages, Okay. different like development and like attraction and attention and Okay. employees performance maybe like this. ओके, एक शख्स की पैदाइश से लेकर आखिर तक का जितना भी अमल है वो इस दुनिया में होता है, ठीक, और एक शख्स की एंट्रेंस से उससे पहले से जो काम स्टार्ट हो जाता है वो बेसिकली एम्प्लॉय, और उसका जब एंड या तो वो टर्मिनेशन या वो रेजिग्नेशन या फिर वो रिटायरमेंट तक का जो पूरा प्रोसेस होता है वो आपका एम्प्लॉय लाइफ साइकिल कहलाता है। अब अगर फर्ज करें जी मुझे फरीद अहमद साहब ने एक पोजीशन के लिए अप्लाई किया है एचआर एग्जीक्यूटिव की, ठीक, तो एचआर एग्जीक्यूटिव की पोजीशन जो मेरे पास अगर ये न्यू पोजीशन होगी तो मैं इसका मैन पावर एक्विजिशन क्रिएट करूंगा, इसकी जॉब एनालिसिस करूंगा। अगर मेरे पास ऑलरेडी ये पोजीशन वैकेंट होगी, री हायरिंग होगी, तो मैं इसको जो मेरे पास के जॉब एनालिसिस होगा वो मौजूद होगा, मैं इसकी मैन पावर एक्विजिशन फिर भी क्रिएट। मैन पावर एक्विजिशन ये होता है कि आप किसी पोजीशन की रिक्विजिशन क्रिएट करते हैं, ठीक, ये वर्कफोर्स प्लानिंग में आ गया आपका। इसके बाद हमने एक जॉब ऐड दी, इन साहब की बहुत सारे लोगों की सीवी है जिसमें फरीद अहमद खान को हमने कॉल किया इंटरव्यू के लिए, ठीक, उनकी सिलेक्शन हुई, सिलेक्शन के बाद हमने इनको ऑफर लेटर दिया, उन्होंने एक्सेप्ट करके ज्वाइन किया। ज्वाइन करते साथ हमने इसकी ओरिएंटेशन करी। ओरिएंटेशन जी हम कंपनी के बारे में बताते हैं, कंपनी का मिशन विजन, कंपनी कहाँ का एग्जिस्ट करती है, क्या क्या इसका वर्क है, प्रोडक्ट डिटेल्स क्या है, इधर इस सर्विस सेक्टर और एफएमसीजी जो भी है। इसके बाद इसकी इंडक्शन वगैरह के प्रोसेस, फाइल्स वगैरह कंप्लीट, एम्प्लॉय की पर्सनल फाइल वगैरह। अब इसके बाद इसकी हम कॉम्पिटेंसी का एक मैपिंग करते हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट में हम इसकी ओवरऑल साहब हैं, अदर इज इट इट्स दे नो हाउ टू एफिशिएंटली यूज एक्सेल और नॉट। एक्सेल पे इनको डिमांड है, अब इसमें इनकी महारत इतनी एडवांस लेवल नहीं है, तो ये एडवांस लेवल के लिए जो इनका जो लाइन मैनेजर है या ओवरऑल जब हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम चलाते हैं उस वक्त ये हमें टीएनए लिख के देते हैं कि फरीद अहमद खान को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, तो इसके बेस पे हम अपना कैलेंडर डिसाइड करते हैं और फिर इसकी एम्प्लॉय की ट्रेनिंग करवाते हैं, कॉम्पिटेंसी, फिर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अब ये ट्रेनिंग इन हाउस भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। इसके बाद करियर प्रोग्रेशन। अब जैसे अब मैं फर्ज करें एचआर एग्जीक्यूटिव पे फहद फरीद अहमद साहब आए हैं और आगे 5 साल में इनका करियर प्लान क्या होगा, 7 साल बाद इनका करियर प्लान कहाँ होगा, किस, अगर ये एएम पोजीशन तक करते हैं तो 7 इयर्स में ही कहाँ तक जाएंगे एएम लेवल पर, देन फिर वो मैं आपको आगे भी शो करूँगा। ये देखिए एम्प्लॉय करियर मैनेजमेंट, एंट्री लेवल पे एक शख्स ने ज्वाइन किया 22 साल की उम्र में, देन फिर इसका फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर या असिस्टेंट मैनेजर डिपेंड अपॉन देयर परफॉर्मेंस, और फिर देन फिर मैनेजर लेवल पे मिडिल मैनेजमेंट एंड सीनियर मैनेजमेंट एंड टॉप मैनेजमेंट। तो ये बेसिकली इनका करियर पूरा जो है आपका एचआरएमएस जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है उसके थ्रू आप डिजाइन कर रहे होते हैं, तो ये बेसिकली पार्ट होता है जो आपका करियर प्रोग्रेशन और करियर प्लानिंग में आता है आपका एम्प्लॉयज का। ये हर एम्प्लॉयज का बनाया जाता है, जिन इदारों में सिस्टम है, जिन ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम्स है वहाँ पे तो ये बहुत आसान है, अदरवाइज उनमें बाकी जहाँ पे मैनुअल काम होता है वहाँ पर थोड़ा सा ये मुश्किल होता है, ठीक। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, मोटिवेशन, और अगर ये जो फरीद साहब है जो एक रिज़ाइन देते हैं और छोड़ के जाते हैं, उस रिज़ाइन की भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उसकी भी एक प्रोसेस होता है। एग्जिट मैनेजमेंट एग्जिट इंटरव्यूज़ जो है वो हमसे कंडक्ट करते हैं, उनसे हम पूछते हैं कि क्या ऐसा रीज़न है इसकी ब्याज पे आप छोड़ के जा रहे हैं, आप एम्प्लॉय मतलब
कि कंपनी को छोड़ के जाए, तो अदर वो कोई सैलरी का रीजन, तो ये बेसिकली पूरा फॉर्म डिजाइन होता है जो मैं आप अभी कुछ टाइम में शेयर भी करूंगा, इससे आपको आइडिया होगा कि कैसे होता है। बेसिकली प्रैक्टिकल पे हम आ जाएंगे फिर। ये वही चीज़ें हैं, रिक्रूटमेंट, डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, 3 काम होते हैं एचआर के, 3 चीज़ें होती हैं इस पे एचआर काम कर रहा होता है। बिजनेस की स्ट्रेटजीज को, बिजनेस के एचआर मिशन विजन को देखते हुए सब चीज़ें अलाइन करता है इसको। ओके, मैन पावर प्लानिंग की मैं बात कर रहा था, कंपनी स्ट्रेटजी, जॉब एनालिसिस करा, कंपनी स्ट्रेटजी देखी, जॉब एनालिसिस करा। अब हमें स्टाफ रिक्वायर्ड है किस जॉब के लिए, ठीक, क्या वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है, अगर है तो हम इसको देख के इसको वैल्यूएट करेंगे, इसका इंटरव्यू करेंगे और फिर इसको हम उस पर इसकी सैलरीज वगैरह या पर्क्स वगैरह जो भी रिवाइज करके इसको ऑन बोर्ड करेंगे। अगर नहीं तो फिर हम इसकी डिफरेंट सोर्सेज से हम उसको हायर करेंगे। अब क्या ज़रूरत पड़ती है हमें मैन पावर प्लानिंग की, क्यों हमें शख्स कोई रिक्वायर्ड है? क्या कोई ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केटिंग के शख्स को, मार्केटिंग के एक एम्प्लॉय को हम एचआर की पोजीशन हो उसको हम उसका काम भी अलॉट कर दें? ऐसा हो सकता है? हमें कोई बताएगा? रेहान खान है हमारे पास, इस वक्त मौजूद हैं? मोहम्मद हबीब? मैन पावर प्लानिंग में कोई सवाल आपका? All right, I guess Hania, are you Sayyid there? Arshad Ali? Yes, ma'am. Yes, Hania. So, what's your understanding about this manpower planning? Ma'am, is manpower planning. It's all about how the different employees come together to get interaction to the decision that how they will hire employee and how they will train employee and what facilities they are providing to the employees, basically. Okay, basically manpower is, इसको अगर हम, अच्छा और कोई इसके अलावा आप में से बताना चाहेगा? Sir, can I answer? Yes, you can. It's basically you plan and decide what positions need to be filled, and then you decide how you plan on filling them. Workforce planning is that, it's also called personnel planning, and then there's different types. There's also succession planning, which is when you're deciding for executive level jobs, and yeah, you do this through forecasting. Okay, ठीक है, great. Okay, यहाँ तक कोई सवाल आपका? पोजीशन की हायरिंग कैसे होती है, कैसे हम एक पोजीशन को फिल करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, उसका स्टेप्स क्या होते हैं? Okay, all right, Ozair, let's join back because meeting is about to end. So let's resume after again joining back. Okay.